Hello and good morning everyone. I hope you are doing good. Guys, this is Mayank Sharma here and I am going to start a new series of IPC. And you guys know that IPC is one of the most important portion in the DU LLB entrance, जहाँ से हर बारी every year around 7 to 8 questions are being asked. So we cannot afford to leave this portion of the IPC, and having a comprehensive and a good understanding of IPC is must to crack the DU LLB entrance. So we are going to start with IPC, and जितने भी IPC के अंदर important topic होंगे we will try to cover each one of them in a much comprehensive and easiest method. सो आप में से जितने भी लोग नए हैं चैनल पे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें. एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट जब भी आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं सो प्लीज़ रिमेंबर दैट यू शुड हैविंग अ बेयर एक्ट विथ यू, जिससे मैं कुछ भी अगर आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ सो दैट यू कैन मार्क इट ओवर योर बेयर एक्ट. ठीक है, अगली बारी से जब भी आप लोग वीडियो को देखेंगे प्लीज़ कीप योर बेयर एक्ट अलोंग विथ यू. Now let's start with the theft. So you guys know that कि what is theft, because IPC is such a subject जो हम वैसे भी generally देखते हैं in movies, in everywhere we see the crimes is happening. So we read newspaper, we always understand a crime, but always remember that having a generalized knowledge of an offense is a bit different with the technical terms. So आज इस वीडियो के अंदर या फिर जब भी हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निकल पोर्शन, एंड जो भी आपका जनरलाइज पोर्शन है प्लीज़ कीप डेट असाइड एंड फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट. नाउ स्टार्टिंग विथ थेफ्ट. सो दिस इज मैंशन अंडर सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी. what is the definition of theft? So I am reading the definition and then I will decode it to you. Theft is whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. This is the definition which is mentioned in the Bayer Act. Now I know that कि आप में से काफ़ी बच्चों को अभी क्लियर नहीं हुआ what is theft. कोई बात नहीं, जैसे जैसे आज इस वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे आई कैन गारंटी दैट जब आप वीडियो को एंड करेंगे थेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो whoever intending, now underline these terms, intending dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. सो आपने ये सब अंडरलाइन कर लिया बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट. अगर इनमें से कोई भी एक भी इंग्रेडिएंट मिसिंग है इट इज़ नॉट अ थेफ्ट. सो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट विच आई हैव जस्ट हाईलाइटेड इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिस है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी थेफ्ट. नाउ जस्ट हैविंग अ मोर क्लैरिटी ओवर इट. Now I am going to decode the each and every ingredient of the theft for the better clarity. And remember, we are doing it for the entrance purposes. We are not going to and remember, now I am going to decode the ingredient of theft for you. And remember guys, we are doing it for the entrance point of view and not for the semesters. ठीक है, तो we will not go into the very much depth of the concept. हम उतना ही करेंगे which is requirement for solving questions in the examination. ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद इट. एंड रिमेंबर, जैसे ही हम इसको आपको एक बारी थेफ्ट समझा देंगे उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. सो अगर आपको अभी समझ नहीं आता है डोंट लूज़ योर फेथ. एक बारी जैसे ही हम लोग वीडियो के प्रोसीड करेंगे एंड आई विल डिस्कस इलस्ट्रेशंस विद यू, द थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर क्लियरर टू यू. सो जस्ट कीप होल्डिंग ओवर द वीडियो. नाउ थेफ्ट के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या आते हैं? सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट्स. नंबर 1 that intention. नंबर 2 dishonestly. ठीक है, आप भी इसको कहीं नोट कर लें फॉर द बेटर क्लैरिटी. नंबर 3 इट शुड बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी. नंबर 4 इट शुड बी इन द possession of somebody. Number 5 it should be without the consent. And the last, move in order to such taking.
So these are the 6 main ingredient of theft, and remember, if any of them is missing, the offense of theft will not be committed. अब देखते हैं इंटेंशन क्या होती है, ठीक है. यू नो दैट इट शुड बी हैविंग इंटेंशन. जब भी मैं कोई सामान उठाता हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ थेफ्ट, मेरी इंटेंशन होनी चाहिए उस सामान को चुराने की, ठीक है. अगर मेरी इंटेंशन ही नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी थेफ्ट. नंबर सेकंड, इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन. अब डिसऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? डिसऑनेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है wrongful gain and wrongful loss. Wrongful gain and wrongful loss means like you are having the legal authority over your phone, mobile phone, ठीक है, and I take it from you. इसका क्या मतलब हो गया? मैंने अपने आप को क्या करा लिया? wrongful gain हो गया. किसको? मेरे को. Because I am not legally entitled for that particular phone, so it is a wrongful gain to me. And since it is your legal right to having that particular phone and I take it from you, I have made you wrongful loss. ठीक है, तो it is wrongful gain and wrongful loss. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इट इज़ वॉट? डिसऑनेस्टली. ठीक है, मैं कोई सामान उठाता हूँ, जब भी कोई चोर किसी सामान को उठाता है तो वो क्या सोच के उठाता है कि मेरे को उससे फ़ायदा होगा, तो डेट इज़ गोइंग टू बी द रॉन्गफुल गेन टू पर्टिकुलर थेफ्ट. ठीक है, थीफ. एंड रॉन्गफुल लॉस किसको होगा? जिसका सामान चुराया जा रहा है. क्यों? क्योंकि वो उसका लीगली तौर पे अधिकार है. एंड जब आप उसका सामान उठाओगे तो उसको क्या होगा? रॉन्गफुल लॉस होगा. सो आई होप आपको डिसऑनेस्ट का मतलब समझ आ गया होगा. बट अगर नहीं भी आ रहा है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द इलस्ट्रेशंस. नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द मूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता है, विच इज़ नॉट अटैच टू अर्थ. ठीक है, रिमेंबर, नॉट अटैच टू अर्थ. तो जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो अर्थ से तो अटैच नहीं है ना, सो डेट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्री का, पेड़ होते हैं, पेड़ किससे अटैच होते हैं? अर्थ से अटैच होते हैं. सो दीज आर नॉट द मूवेबल प्रॉपर्टी. बट अगर मैं पेड़ को काट दूँ तो डेट बिकेम अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज नाउ आई कैन मूव इट. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म मूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर फोर्थ, दैट इज़ द पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार. ठीक है, यहाँ पर लिटरल मीनिंग में आपको बता, तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार. इट शुड बी इन द पोजेशन ऑफ समबडी. लाइक जैसे मैंने आपका फ़ोन ले लिया तो आपका तो अधिकार है ना उस पर. इट इज़ इन द पोजेशन ऑफ यू, सो इट शुड बी इन द पोजेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सड़क पर कोई फ़ोन पड़ा मिल जाए, सो डेट, अगर मैं उसको उठा लेता हूँ, डेट विल नॉट बी अ थेफ्ट. क्यों? क्योंकि उस पर किसी का पोजेशन ही नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा था सड़क पे. बट अगर मैं आपका फ़ोन ले लेता हूँ, इट मीन्स दैट इट इज़ इन योर पोजेशन एंड आई एम टेकिंग इट, सो आई एम कमिटिंग थेफ्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर फिफ्थ, डेट इज़ द विदाउट कंसेंट. सबसे मेन चीज़ है कि मैंने आपसे बिना पूछे आपका फ़ोन उठा लिया. ठीक है, इट इज़ विदाउट योर कंसेंट. अगर मैं आपसे पूछ कर आपका फ़ोन ले लेता हूँ, इसका मतलब आपने मेरे को अलाउ कर दिया, यस आई कैन टेक एंड यूज़ योर फ़ोन. इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस इट इज़ नॉट गोइंग टू बी थेफ्ट. आई होप इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर क्लियर टू यू विद ईच एंड एवरी पॉइंट दैट कि अगर आपका कंसेंट ही नहीं है तो ही थेफ्ट होगा. अगर आपका कंसेंट है देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी थेफ्ट. एंड कंसेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट. ठीक है, एक तो होता है एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड एक होता है इम्प्लिसिट कंसेंट. ठीक है, रिमेंबर बोथ ऑफ देम, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिटली मतलब एक्सप्रेस वे में, एंड इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड, जिसको समझा जा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, एंड मुझे लगता है सिंस यू आर माई फ्रेंड, सो यू विल नॉट से नो टू मी टू यूज़ योर फोन, सो आई टेक इट. इट मीन्स आई एम हैविंग इम्प्लिसिट कंसेंट. ठीक है, बट अगर मैं आपसे कोई स्ट्रेंजर आपसे पूछता है कि कैन आई यूज़ योर फोन, एंड यू से येस यू कैन यूज़ इट, इट मीन्स यू हैव गिवन योर एक्सप्लिसिट कंसेंट. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना. नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर सिक्स, मूव इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. यानी कि उस चीज़ को लेने के लिए, टू टेक पर्टिकुलर थिंग, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैं चोरी करने जा रहा हूँ, उसको लेने के लिए आई विल हैव टू मूव इट. मेरे को आपका फ़ोन उठाना पड़ेगा. ठीक है, मैं आपको फ़ोन ले करके उठाऊँगा तो मैंने उसको हिला दिया ना, राइट. आई एम मूविंग इट,
सो मूव इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। जब मैं इन सभी 6 के 6 इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दूंगा, आई विल से द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज़ बीइंग कमिटेड। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है, लाइक इंटेंशन मिसिंग है, मैं आपका फ़ोन लेता हूँ ये समझ के कि वो मेरा ही फ़ोन है, ठीक है, बेशक मुझे गलत फहमी हो चुकी है, आई एम इन अ डायलेमा दैट वेदर इट इज़ माई फ़ोन और नॉट, बट मुझे ये लगता है पर्सनली कि वो मेरा फ़ोन है, आपके पास है, एंड आई एम टेकिंग इट, तो इट इज़ नॉट थेफ्ट बिकॉज मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंड, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, मैं अपना फ़ोन समझ के उसको ले रहा हूँ, सो इट इज़ नॉट थेफ्ट। आई होप आपको सारा का सारा अब तक क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज़ थेफ्ट। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, डो नॉट फॉरगेट टू आस्क इट इन द कमेंट। तो जितने भी आप लोगों के डाउट होंगे तो मैं उनको कंबाइन करके एक वीडियो बना दूंगा एज अ डाउट सेशन वीडियो, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट आता है पूरी वीडियो के अंदर, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अब फिर से आप लोग एक बार डेफिनेशन देखिए, अब आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट इज़ थेफ्ट? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. I hope आप सभी को अब theft की definition clear है। एंड अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। एंड दिस इज़ जस्ट वन एडवाइस फॉर यू दैट जब भी आप आईपीसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अंदर जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, इट इज़ योर ड्यूटी टू रीड ऑल ऑफ देम। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्टिंग के 1-2 पढ़े बाकी के छोड़ दें, नो, इट इज़ गोइंग टू लॉस्ट यू इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज जो एग्जामिनेशन के अंदर जो एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, दे आर फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस ओनली, ठीक है। सिर्फ इलस्ट्रेशंस को ही उठा करके वो आपको क्वेश्चन बना देंगे, एंड अगर आपने उनको छोड़ दिया, इट इज़ गोइंग टू लॉस यू इन द एग्जामिनेशन, सो नेवर लीव इट। आपको पता है टेंडेंसी क्या होती है बच्चों की, वो अगर लेट से 20 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं थेफ्ट के अंदर, तो वो स्टार्टिंग के 3-4 पढ़ते हैं, उनको लगता है कि अरे सब कुछ सेम ही तो है, हमको तो समझ आ गया थेफ्ट, बट नो नो नो, each and every illustration is having its own value, so it is your duty to read all of them. Now इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक illustrations पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम हर illustrations को अच्छे से समझ के करते हैं। Now starting with illustration A, समझिए, A cuts down a tree on Jet's ground with the intention, underline it, intention of dishonestly taking tree out of the Jet possession without Jet consent, ठीक है। Here, as soon as A has served the tree in order to such taking, A has committed theft. समझ आ गया आपको थेफ्ट क्या हो रहा है? A बेसिकली जेड के ग्राउंड में जाता है और वहाँ पे पेड़ को काटने लगता है, एंड उसके इंटेंशन है कि वो इसको जेड के पोजेशन से दूर कर दे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही वो उस पेड़ को काट देगा, यहाँ पर सर्व का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अलग करना। जब तक वो ट्री अर्थ के साथ अटैच है, इट इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट जैसे ही वो उसको काट के अलग कर देगा अर्थ से, ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। यहाँ पर देखिए सभी इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, इंटेंशन, डिसऑनेस्ट, पोजेशन, कंसेंट, एंड एज सुन एज ही मूव दैट ट्री इन ऑर्डर ऑफ सच टेकिंग, ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर बी, ये क्या बोलती है, इसमें ये बताया गया है कि ए ने अपने पॉकेट के अंदर कुछ रखा इस इंटेंशन के साथ कि जेड का डॉग उसको फॉलो करे। यहाँ पर ए की इंटेंशन क्या है कि वो उसके डॉग को जेड के पोजीशन से बाहर ले जाए, ठीक है। एंड जैसे ही उसका डॉग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट। एंड यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो एनिमल्स होते हैं ना, देज आर बेसिकली द मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि वो तो लिविंग बीइंग है सो दे कैन नॉट बी द प्रॉपर्टी, नो नो नो, the animals are basically the property and they are movable property. So जैसे ही आप इसके अंदर एक बारी इंग्रेडिएंट देख लीजिए, तो एक ही क्या है, मेलाफाइड इंटेंशन है, एंड डिसऑनेस्टली टेकिंग जेड के पोजेशन से उसको बाहर ले जा रहा है विदाउट द कंसेंट, ठीक है। एंड वो चल भी रहा है, डॉग उसको चल चल के जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट। नाउ कमिंग ऑन टू इलस्ट्रेशन सी, यहाँ पे क्या हुआ है, ए को एक बुलॉक मिल गया है जिसके अंदर ट्रेजरी का बॉक्स रखा हुआ है। अब ए क्या सोचता है, वो इसको किसी गलत डायरेक्शन के अंदर ले जाता है इस उद्देश्य के साथ कि वो सारा खजाना खुद रख लेगा। अब जैसे ही बुलॉक मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट। नाउ कमिंग ऑन टू इलस्ट्रेशन डी,
ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड एंट्रस्टेड। गाइज यहाँ पर एक शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है वो बन जाता है एंट्रस्टेड, ठीक है, एंट्रस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट विदाउट जेड्स कंसेंट ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस भी आपको इसी तरीके की आएगी। ये कुछ एंट्रस्टेड रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है, कुछ एंट्रस्टेड रिलेशनशिप्स होती हैं, लाइक पेरेंट एंड द चिल्ड्रन, लाइक टीचर एंड द स्टूडेंट, लाइक डॉक्टर एंड द पेशेंट, लाइक लॉयर्स एंड द क्लाइंट, ठीक है। देर आर अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप लाइक द मास्टर एंड द सर्वेंट, ठीक है। तो कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जिस पे ट्रस्ट होता है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए बीइंग जेड सर्वेंट, ए क्या होता है, वो जेड का सर्वेंट होता है, तो जेड उस पर ट्रस्ट करके उसको अपनी प्लेटें दे देता है। अब यहाँ पर क्या करता है, ए उन प्लेटों को लेकर के भाग जाता है डिसऑनेस्टली, सो ही हैज़ कमिटेड व्हाट, थेफ्ट। नाउ इलस्ट्रेशन ई, देखिए इसमें मेन चीज़ क्या आती है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्ट, कीवर्ड क्या है इस इलस्ट्रेशन का, एंड ट्रस्ट, यानी कि विश्वास करता है। अब यहाँ पर आप कुछ एक चीज़ समझें कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एंड ट्रस्ट होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है, लाइक टीचर स्टूडेंट, पेरेंट चिल्ड्रन, लाइक मास्टर एंड हिज सर्वेंट, like there are a lot of relationship like doctor patient lawyer and his client, so जहाँ पर ट्रस्ट होता है, सो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एंड ट्रस्ट। जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्ट हिज प्लेट टू ए, जेड जर्नी पर जाता है एंड वो ए को विश्वास करके उसको प्लेट दे के चले जाता है कि आप इसको मेरे वेयर हाउस में रखें जब तक मैं नहीं लौट करके आता। अब ए क्या करता है, वो गोल्ड स्मिथ के पास जाता है और उसको बेच देता है। यहाँ पर जो प्लेट थी वो जेड के पोजेशन में नहीं थी, द प्लेट वॉज नॉट इन द जेड पोजेशन, क्यों, क्योंकि वो तो उसको ए को दे करके जाता है, सो इट कुड नॉट देयर फॉर बी टेकन आउट ऑफ द जेड पोजेशन एंड हेंस ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, ठीक है। सो ये थेफ्ट नहीं होगा। आपको समझ आ गया ना कि वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी थेफ्ट, इट इज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज़ गोइंग टू बी द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बट इट इज़ नॉट थेफ्ट। ये थेफ्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जेड उसको ए को दे करके चले जाता है, सो जेड इज़ हैविंग नो पोजेशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेट एंड you know that possession is the one of the most important ingredient of theft, and अगर possession नहीं है then it is not theft. Now illustration F, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 3 इलस्ट्रेशंस आएंगे आपको रिंग से रिलेटेड एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। पिछले बार भी रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा था, ठीक है। एफ, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड के घर में ए जाता है जेड के घर में और वहाँ पर वो देखता है कि टेबल पे एक रिंग रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो रिंग है वो जेड के पोजेशन में है और अगर ए उसको उठाता है तो ही विल कमिट थेफ्ट। समझ आ गया आपको, ए जेड के घर में जाता है, जेड के टेबल पे एक रिंग रखी हुई होती है एंड यहाँ पर अगर ए उस रिंग को उठा लेता है सो ए विल कमिट थेफ्ट। नाउ इलस्ट्रेशन जी, ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट दो ही मे कमिट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ए क्या करता है, वो कहीं रास्ते में जा रहा था और उसको कहीं रास्ते में एक अंगूठी, एक रिंग पड़ी मिल जाती है, क्योंकि वो रास्ते में थी सो इट वाज नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंड अगर वो वहाँ पर उस रिंग को उठा लेगा इट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी बडी। ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है बट इट इज़ नॉट थेफ्ट। समझ गए। तो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, शुड बी इन द पोजेशन ऑफ समबडी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पोजेशन में नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट इन द पोजेशन, सो नो पोजेशन हैंस नो थेफ्ट। नाउ कमिंग ऑन टू इलस्ट्रेशन एच एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसका एक इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं, लाइक ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन अ टेबल इन जेड हाउस। एंड आपको पता है वाली जो इलस्ट्रेशन थी ये 2021 DOLB के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। आप देखना डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस को उठा करके आपको रख दिया गया है पेपर के अंदर, सो डेट्स वाई आई सेज दैट कि इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए
बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ 1 2 3 इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं एंड देन वो उनको लेफ़्ट आउट कर देते हैं बाकियों को। बट आपको सारी ही इलस्ट्रेशंस पढ़नी होंगी, प्लीज़ रिमेंबर दिस, आपको सारी की सारी इलस्ट्रेशंस पढ़नी होंगी। फ़र्क नहीं पड़ता उसमें 20 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं या फिर 5, यू हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम। नाउ सी, A sees a ring belonging to Jed lying on a table in Jed's house, not venturing to misappropriate the ring immediately। क्या होता है, जेड के घर पे रिंग पड़ी हुई होती है और ए उसको देख लेता है, ठीक है, टेबल पे रिंग पड़ी हुई होती है। अब ए को क्या लगता है कि अगर मैं रिंग को अभी हटाता हूँ तो हो सकता है जेड उसको पता लगा ले, जेड मुझे पकड़ ले। तो वो क्या करता है, उसको ऐसी जगह छुपा देता है जहाँ पर वो रिंग उसको मिलेगी ही नहीं। एंड बाद में जब जेड सोचेगा कि अरे मेरी रिंग तो खो गई होगी, शायद मैंने कहीं रख के भूल गया होऊंगा, तो वहाँ पर ए उस रिंग को चुरा लेगा, ऐसा इन्हें सोचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट व्हेन ही फर्स्ट मूव द रिंग। जब उसने उस रिंग को छुपाने के लिए उसको उठाया, ही हैज़ कमिटेड द थेफ्ट, बिकॉज उसने सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं थेफ्ट के उसने फुलफिल कर दिए, ठीक है। सो ए एट द फर्स्ट टाइम हैज़ कमिटेड थेफ्ट। आपको समझ में आया? एंड यहाँ पर आप एक बार खुद से, इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया आप एक बार खुद से देखना, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द थेफ्ट, ठीक है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ द थेफ्ट, एंड यू विल गेट टू नो दैट कि ऑल द इंग्रेडिएंट आर फुलफिल्ड इन दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। नाउ कमिंग ऑन टू इलस्ट्रेशन आई, यहाँ पर आप देखिए, ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड ए ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड, ठीक है। ए क्या करता है, जेड के पास अपनी घड़ी को दे आता है कि आप इसको सही कर दीजिए, ठीक है, वो उसको अपनी दुकान पे ले जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर ए ने उससे कोई भी डेप्थ नहीं ले रखा था, ए ने उससे कोई भी कर्जा नहीं ले रखा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज़ डेप्थ। एंड रिमेंबर, मेरे को लगता है कि इस बारी ये लोग डेप्थ से रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देर आर आई थिंक अराउंड 3 इलस्ट्रेशन रिलेटिंग टू डेप्थ, आप उनको बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेप्थ नहीं ले रखा था, तो वो क्या करता है, उसकी दुकान में जाता है एंड उससे अपनी वॉच को वापस ले आता है, क्योंकि वॉच जो थी वो उसी की थी। सो ही वॉज नॉट हैविंग एनी इंटेंशन, एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पर कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन थेफ्ट। हो सकता है इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन क्रिमिनल ट्रेसपास, बट इट इज़ नॉट अ क्राइम ऑफ थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, दैट इलस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन जे, ए owes money to Jed for repairing the watch, and if Jed retains the watch lawfully as a security for the debt, and A takes the watch out of the Jed possession with the intention of depriving Jed of the property as a security for his debt, he will commit theft inasmuch as he take it dishonestly। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए जेड के पास जाता है और उससे अपनी वॉच को रिपेयर कराता है, ठीक है। एंड ए ने क्या कर रखा है, उससे कुछ डेप्थ ले रखा है, कुछ कर्जा ले रखा है, तो वो क्या करता है, अपनी जो उसकी घड़ी है, जो उसकी वॉच है, वो उसको एज अ सिक्योरिटी जेड को दे करके आ जाता है। अब यहाँ पर अगर ए जा करके उसके मतलब जेड के पोजेशन से उस घड़ी को वापस लेना चाहे, तो ही विल कमिट थेफ्ट। क्यों? क्योंकि ही ओज डेप्थ, ठीक है। रिमेंबर, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है एंड आपने उसको एज अ सिक्योरिटी जमा कर रखा है, सो अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर कोई डेप्थ से रिलेटेड इलस्ट्रेशन आ जाए, तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने डेप्थ ले रखा है एंड आपने अपनी कोई भी चीज़ एज अ सिक्योरिटी वहाँ पर जमा करा रखी है, तो वो जो चीज़ होगी वो किसकी होगी, उस व्यक्ति की होगी जिसके पास आपने उसको जमा करा रखा है, वो आपकी नहीं है। एंड अगर आप उसको जोर ज़बरदस्ती जा के लेते हैं, सो यू विल कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। अब आप देखिए, यहाँ पर घड़ी किसकी थी, ए की थी, बट स्टिल ही विल बी prosecuted for the offense of theft just because he has submitted it as a security for the debt he owes from Jet। तो समझ में आ गया, अगर आपने कहीं से डेप्थ ले रखा है एंड आपने अपने सामान को एज अ सिक्योरिटी जमा करा रखा है, तो आप उस चीज़ को नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द पोजेशन ऑफ इट। इलस्ट्रेशन के अगेन, इफ ए हैविंग pawned his watch to Jed takes it out of the Jed possession without Jed consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft, though the watch is own property inasmuch as he take it dishonestly। Again the same illustrations, ठीक है।
अगर आपने कर्जा ले रखा है ना, आपने ऐसा सिक्योरिटी जमा करा रखी है अपनी कोई भी चीज़ एंड आप उसको जा करके लेना चाहते हैं, सो इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन थेफ्ट। आप यहाँ पर ये डिफेंस नहीं दे सकते कि लुक दैट इज़ माई वॉच सो आई एम टेकिंग इट, आई एम हैविंग राइट ओवर इट। नो, अगर आपने डेप्थ ले रखा है एंड आपने एज अ सिक्योरिटी जमा करा रखी है, सो दैट्स नॉट इन योर पोजेशन। A takes an article belonging to Z out of the Z possession without Z consent, ठीक है, with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for its restoration। यहाँ पर क्या हुआ, A ने Z का कुछ सामान उठा लिया और अपने पास रख लिया, ये सोच के कि जब Z ये बोल देगा कि जो मेरा सामान ढूंढेगा मैं उसको कुछ इनाम दूंगा, कुछ रिवॉर्ड दूंगा, मैं उसको जब वापस कर दूंगा। यहाँ पर A क्या सोचता है, दोबारा से समझिए, यहाँ पर जेड का कोई सामान है और उसको ए रख लेता है उठा के, एंड ए ये सोचता है कि जब जेड कोई इनाम घोषित करेगा तो मैं इसको लौटा दूंगा एंड उस रिवॉर्ड को रख लूँगा। तो यहाँ पर क्या ये एक थेफ्ट होगा? येस, इट इज़ गोइंग टू बी थेफ्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको बाद में वापस करेंगे वापस नहीं करेंगे। द मोमेंट यू टेक इट अवे फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द ओनर इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ थेफ्ट। ठीक है, even for a minute, even for a moment, if you take it out of the possession of the real owner, you will constitute the offense of theft, no matter you will return it back or not। ठीक है, now coming on to illustration M, A being on friendly terms with J, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? friendly terms। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जेड के लाइब्रेरी, ए जो है वो जेड के लाइब्रेरी के अंदर जाता है और ये मान के कि क्योंकि वो मेरा दोस्त है वहाँ से एक बुक उठा के ले जाता है पढ़ने के लिए, वो सोचता है कि बाद में मैं इसको लौटा दूंगा। यहाँ पर इट इज़ नॉट थेफ्ट, वाई? बिकॉज देर इज़ एन इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, क्योंकि वो उसका दोस्त था, सो हियर वाट इज़ इट? इट इज़ एन इम्प्लाइड कंसेंट। ऐसा इम्प्लाइड कंसेंट था क्योंकि वो उसका दोस्त था, सो ही विल नॉट से नो टू हिम, सो ही टेक इट, सो हियर इट इज़ नॉट थेफ्ट। और यहीं पर अगर इस फ्रेंडली जो शब्द है, ये जो फ्रेंडली वर्ड लिखा गया, अगर ये नहीं होता, सो ये पूरे इलस्ट्रेशंस में सारी चीज़ें सेम थी, बट ये हो जाता कि ए गोज़ टू द लाइब्रेरी ऑफ जे इन जेड एब्सेंस एंड डू वट द एक्ट इज इट, सो क्या होता? इट विल बी एन एक्ट ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रेंडली। रिमेंबर, ये जो सारी की सारी इलस्ट्रेशंस हैं, दे कैन बी द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू बी रिमेंबर इट। आप ऐसा ना हो कि जब एग्ज़ाम के अंदर जाएं तो आप इसको इग्नोर कर दें फ्रेंडली को, और यू विल से दैट लो इट्स अ थेफ्ट। नो, इट्स नॉट अ थेफ्ट। क्यों? बिकॉज हियर इट इज़ एन इम्प्लाइड कंसेंट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ द फ्रेंडशिप। आई होप आपको ये सब बहुत क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन एन, ए आस्क चैरिटी फ्रॉम द जेड वाइफ। ए जो है वो जेड के घर जाता है और उसकी जेड की वाइफ से चैरिटी मांगता है। ठीक है, अब उसकी जो वाइफ क्या करती है, वो उसको फूड, क्लोथ, ये सब चीज़ें दे देती है। ए को पूरा, अब ए को पता है कि ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी हैं? उसके हस्बैंड की हैं। ठीक है, हियर इट इज़ प्रोबेबल दैट ए मे कंसीव दैट जेड वाइफ इज़ ऑथराइज टू गिव ए अवे आर्म्स। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। अगर ए को ये पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसके नहीं है, उसके हस्बैंड की हैं, एंड ऐसा पता होते हुए भी वो जा कर के उसकी वाइफ से सारी चीज़ें मांगता है, सो ही विल कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। बट अगर उसको ये पता है कि नो द वाइफ इज़ ऑथराइज टू यूज़ हिज हस्बैंड गुड, सो ही विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। यहाँ पर चीज़ आती है इंटेंशन की। ठीक है, अगर उसको ये पता है कि जेड की जो वाइफ है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको उस सामान को डोनेट करने की, तो ही विल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? थेफ्ट। बट अगर उसको ये पता है कि नहीं वो उसकी वाइफ है, सो शी इज़ ऑथराइज, सो इन दैट पर्टिकुलर केस ही, मतलब देयर विल बी नो थेफ्ट। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप किसी की वाइफ से कोई सामान ले आते हैं एंड यू नो दैट द वाइफ इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ हर हस्बैंड्स गुड, in that particular case you will constitute theft। Now coming on to illustration O, A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property which A knows to belong to her husband Z and to be as such property as she has not authorized from Z to give. If A takes the property dishonestly he will constitute theft। यहाँ पर समझिए A is paramour of Z's wife। यहाँ पर आप एक चीज़ समझते हैं, मैं आपका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, एंड आप किसी की वाइफ से कोई सामान मांगते हैं, ठीक है, एंड वो आपको वो सामान उठा के दे देती है, एंड आपको पता है कि ये जो सामान है वो किसका है? उसके हस्बैंड का है, एंड द वाइफ इज़ नॉट ऑथराइज टू गिव
that particular goods to you, in that particular case you will constitute theft. यहाँ पर आप ये नहीं दे सकते कि look I am not taking it from your possession, I am taking it from your wife. और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि look ये तो आपकी वाइफ है जिसने मुझे सामान दिया है, मैंने आपसे थोड़ी ना सामान लिया है. यू कैन नॉट गिव दैट पर्टिकुलर डिफेंस. ठीक है. सो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं हस्बैंड वाइफ वाली, ये इट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू इलस्ट्रेशन पी, ए इन गुड फेथ. यहाँ पर यहाँ पर नोट आउट करने की क्या चीज़ है, गुड फेथ. यहाँ यानी कि यहाँ पर उसकी कोई मेलाफाइड इंटेंशंस नहीं है. ठीक है. नो मेलाफाइड इंटेंशंस. ठीक है. सो ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू जेड टू बी ए ऑन्स प्रॉपर्टी, टेक दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ द बीज पोजेशन. हियर ए डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, सो ही विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है. So guys, with this our topic of theft has been completed. So we have comprehensively discussed all the illustrations and the definition of theft. So I think that you won't be having any doubt now, but still अगर आपको कोई doubt है then do not forget to ask it in the comment section. So जैसे ही आप लोग 4-5 डाउट पूछेंगे so I will make a video over your doubt. ठीक है. So डाउट अगर है देन आस्क इट इन द कमेंट. अगर वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ.